Hello and very good morning, my dear students. How are you today? Today we are going to study a new topic that is called mass and weight. Mass and weight. What is the mass and what is the weight? How can we calculate it? What is the property of the mass? What is the SI unit of mass and weight? Okay. Later on, very important. Next question is that what is the difference between mass and weight, and how can we calculate mass as well as weight? Okay, so let's start. First topic is mass. So what is the mass? It is defined as quantity of matter contained in the body. So beta, quantity of matter contained in the body is called mass. For example, I have this one marker. अब इसमें जितनी क्वांटिटी होगी उतना इसके पास क्या होगा? मास. Okay, so if the quantity, suppose this cap is have very small quantity, so its mass is small. But as if we have in larger pieces of this marker, so as the quantity is added, its mass is increases. So quantity of matter contained in the body is called its mass. Okay. Okay. So SI unit of mass is kilogram. तो SI units of mass के क्या होंगे? kg. Okay, kilogram. Okay, next we will study what is the properties of mass. So बेटे mass की properties now we are going to study. The first property is that mass of body directly proportional to the quantity of matter contained in it. तो mass जितना quantity of matter जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? Mass of the body. ठीक है? तो एक small बच्चा होता है हमारे पास small kids, तो उसकी उसमें quantity small है, so its mass is also small. Okay, and the adult man have large quantity of matter, so we know that mass of the adult man is more. So we have numbers of examples of mass. Second property is that mass of body independent of shape, size, weight. तो mass of body का same ही रहता है बेटे, चाहे मैं इसका size spherical कर दूँ, cylindrical कर दूँ, whatsoever, लेकिन quantity तो remain same रहेगी. So it means that either we change the shape, size or state. Okay, अगर मैं इसको melt करके liquid form में ले आऊँगा तब भी इसका mass क्या रहेगा? Same. Okay. Third property is mass of body remains same at all place. At all place का मतलब in the universe. Okay, इसका मतलब mass of the body remains same. Okay, in on earth, on the surface of moon and also in the universe. Why? Because इसके पास जितनी क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी. अगर हम इस मार्कर को मून के सरफेस के ऊपर ले जाएं तो इसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी. इट मींस दैट इसका मास भी क्या रहेगा? सेम. So fourth property is mass is scalar quantity. So mass doesn't have their any particular direction. तो जिस को फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शंस ना हो वे एंड ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी कोई क्वांटिटी हो, जैसे इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसका मास कितना होगा 5 ग्राम 10 ग्राम में भी, बट इसका कोई डायरेक्शंस नहीं है कि मास का पर्टिकुलर डायरेक्शंस होता है. वेट का होता है. वेट जो होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. बट मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. And last, mass can be measured with the help of with beam balance. तो beam balance क्या होता है? Physical balance measure करता है, which measure the mass of the body. And the last, mass can be added algebraically. तो mass को हम added algebraically कर सकते हैं. For example, the mass of this is 5 gram, mass of this is 20 gram. तो इसको add करेंगे तो कितना आएगा? 5 plus 20, 25. Okay. So mass can be added algebraically. So these are the properties. This is the SI unit of mass and this is the definition of the mass. ठीक है? अब हम करेंगे next topic that is also very important, that is called weight. कि what is the weight? Weight क्या होता है बेटे? Force with which a body is attracted by the earth is called a weight. अब देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम छोड़ते हैं ऊपर से तो ये नीचे की तरफ आया. क्यों आया ये नीचे? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी? फोर्स. किसने लगाई? अर्थ ने. तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है. फोर्स कौन सी लगी थी? ग्रेविटी. तो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे? फोर्स लग रही है किसके ऊपर? ऑन एवरी बॉडी. ऑन एवरी बॉडी द फोर्स एक्ट्स. कौन सी फोर्स लग रही है हमारे ऊपर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो क्या होगा? F इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी. मास इनटू ग्रेविटी. ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बेटे? ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर.
And what is the value of F? F क्या है? Force. M क्या है? Mass. G for gravity. So this is the formula for finding the weight. तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम force पे लिख सकते हैं. We can also write it here. Weight. Weight is equal to force is equal to. तो weight और force दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. ठीक है? And this weight is equal to mg. And SI unit of weight क्या होंगे? न्यूटन में. So SI unit of weight is a Newton. SI unit of weight क्या होते हैं बेटे? न्यूटन. Now बेटे we will understand that how can we calculate the value of mass as well as weight. हम अपनी बॉडी का मास भी निकाल सकते हैं और उसका वेट भी निकाल सकते हैं. कैसे? Let's study. First of all हमारे पास एक होती है बेटे वेइंग मशीन. वेइंग मशीन से क्या होता है? हमारा बॉडी का वेट हम मेजर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई बॉडी वेट कितना आ गया? माई बॉडी वेट इज 90 kg. फॉर एग्जाम्पल weight of my body is 90 kg. तो हम इसको weight के यूनिट्स क्या होंगे? weight के यूनिट्स होते हैं न्यूटन. 90 न्यूटन my weight and this is the first part. तो मेरी बॉडी का वेट आ गया with the help of measuring machine. weight measure machine से हमने अपना बॉडी का वेट किया. Now I have to find the value of mass. अगर मैंने मास निकाला तो बेटे कैसे निकालेंगे? We have the formula. फॉर्मूला क्या बेटे? weight is equal to mg. So this value 90 Newton is my weight, which is equal to mg, which is equal to mg. So means 90 Newton is equal to mg. अब हमने क्या निकालना है? मास. मास निकालेंगे तो ग्रेविटी इसके नीचे डिवाइड कर दो. वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कितना होता है बेटे? 9.8 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर. तो इसको हम नीचे करेंगे डिवाइड तो वैल्यू बन जाएगा इसका मास इज इक्वल टू 90 Newton upon 9.8 meter second inverse scale. You know what is the value of Newton? Newton होता है बेटे किलोग्राम मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर. तो अगर हम न्यूटन के ये यूनिट यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यूटन इनटू दिस फॉर्म मीन किलोग्राम मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर. तो बेटे ये यूनिट्स क्या हो गया आपस में? कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास बचा गया लास्ट में मास. मास के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी. तो वैल्यू कितना आ गया इसका? आ गया बेटे 9.18 केजी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास. तो हमारे पास आ गया मास इज इक्वल टू 9.18 केजी. So with the help of this is very simple method to calculate the mass as well as weight of the body. तो वेट को तो हम डायरेक्ट वेइंग मशीन से मेजर कर लेंगे. अपनी बॉडी का वेट हम मेजर करते हैं ना. तो जैसे फ्लोर मिल्स होती है वो आटा चक्की, वहाँ पर भी आप अपने बॉडी का वेट मेजर कर सकते हो अगर आपके पास घर में वेट मशीन नहीं है. ठीक है? तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स के भी अपनी बॉडी के वेट आप मेजर कर सकते हो. तो उनका आपको वेट पता होना चाहिए. जब जो भी वेट होगा उसको आपने 9.8 से डिवाइड कर देना. जो भी वैल्यू बचेगा लास्ट में दैट इज द मास. सिंपल. ठीक है? तो आपने ऐसे एक आपको एक्टिविटी भी डालेंगे जिसमें आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू. दैट इज व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. तो आप उसको सीरियल ऑर्डर के लिए टेबल के फॉर्म में आप लिख भी सकते हो. ठीक है बेटे? सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ आवर मास एंड द वेट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. So let's start next topic, that is what is the difference between mass and the weight. But this question is frequently asked in the examination, that what is the difference between mass and weight. So first of all we will study the properties of mass. Mass को हमने already property को understand कर लिया. What are the property? Mass directly proportional to the quantity of matter contained in the body. Number second property, mass is independent of its shape and size and weight. Third is mass of the body remains same at all places. ठीक है? Mass of the body doesn't change. ठीक है? Mass can be measured with the help of beam balance. ठीक है? ऐसा यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं इसके मास के ऐसे यूनिट्स क्या आते हैं? केजी. Okay? And mass can be added algebraically. So these are the 5-6 properties of mass. Let's study 5-6 properties of weight. First property is force with which a body is attracted by the earth is called weight. First रहेगा इसका definition ही आ जाएगा. Second property is SI unit. SI unit of weight is Newton. So weight is measured in Newton और किसमें measure होता है? और किलोग्राम weight.
तो किलोग्राम वेट में भी इसको मेजर कर लेते हैं. ओके, किलोग्राम वेट को कैसे, विच इज दिस, ये आपका किलोग्राम टू वेट. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो बेटे वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. जैसे ये देखिए, मेरी बॉडी का वेट कहाँ बढ़ रहा है, लेफ्ट राइट के ऊपर, यस, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो मेरी बॉडी के वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन है, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो जिसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हो, वी कॉल इट इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड वेट कैन बी मेजर्ड विद द वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन से हम अपनी बॉडी का वेट मेजर कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज वेट कैन नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वेट जो होता है वो चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी वेट टांडा में 40 kg है, तो ऐसा नहीं है कि आप न्यू दिल्ली में गए तो आपका वेट जो होगा वो 30 हो जाएगा या 50 हो जाएगा. नो, इवन यू चेंजेस स्मॉल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द वेट ऑफ द बॉडी रिमेन सेम. बट यस, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0. यस, एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपकी बॉडी का वेट कितना आएगा, 0 है. So this is the 4 or 5-6 properties of mass as well as weight. Okay, बेटे, thank you.